Hello friends. So today we are going to start with cash book. अब when I talk about cash book, मैं अगर cash book की बात करूँ तो cash book पढ़ाने से पहले I would like you to recall one thing that we studied earlier. हमने कुछ ऐसा देखा था कि भाई there are one thing is for sure कि भाई there is a raw transaction. और ये जो रॉ ट्रांजेक्शन है उसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं. वन इज व्हाट योर जर्नल एंट्री फॉर्म एंड अनदर वन इज व्हाट योर सब्सिडियरी बुक्स फॉर्म. फिर ये मिला के कहाँ जाएगा? लेजर्स में. फिर ये जाएगा कहाँ? ट्रायल बैलेंस एंड देन देयर विल बी फाइनल अकाउंट. ऐसा कुछ हमने अकाउंटिंग साइकिल देखा था बहुत पहले, करेक्ट? In this subsidiary book, we studied 8 types of subsidiary books, correct? From which the 4 main types of goods we studied already, and now the another one, that is your cash book. It is also a part of subsidiary book only that we are going to study. When I talk about cash book, the name itself suggests what? Cash book. Cash is coming in or cash is going out. That is what we need to focus on. We need to decide कि क्या ये ट्रांजेक्शन में कैश आ रही है, क्या ये ट्रांजेक्शन में कैश जा रही है. We need to see that first. पहले वो हमें समझना है कि भाई कैश आ रही है कि जा रही है, उतना हमें पहले तो क्लियर होना चाहिए. That is first thing for sure. Now, इसका हमें रूल पता है. Cash falls under which account? Real account. So one rule is very much pretty much clear with all of us is what? कि भाई debit what comes in and credit what goes out. So whenever cash is coming in उसको हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड पे. and whenever the cash is going out उसको हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे. Correct. If cash is coming in, it will be recorded on debit side. If cash is going out, it will be recorded on credit side because of this rule, right? Now, cash book is of basically 3 types. One is single columnar cash book, double columnar cash book, and multi-columnar or 3-columnar cash book. अब ये सिंगल कॉलमनर कैश बुक में क्या पूछ सकते हैं? They can ask us to make a cash का column or they may ask us to make a bank का column. And we know it, right, कि अगर हम बैंक से भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो that transactions are as good as cash transactions. So they may ask us to prepare a bank book in which all the transactions happening with bank will be recorded. We'll see to it in the questions itself. Now, in double columnar, they may ask us to make cash and bank, or they may ask us to make cash and discount, or they may ask us to make bank and discount. Correct. Discount कौन सा discount? Trade discount की cash discount? Definitely cash discount. And in multi columnar there will be cash, bank and discount का column. So either of the cash book they may ask us to do. Now here I have already made a format over here that you can see on your screens. यहाँ पे in this format I have divided the whole page in 2 parts. This part is your debit side. This part is treated as what? Your debit side. And this part is treated as what? Your credit side. Correct. One is debit part and another one is credit part. Columns कौन से रहेंगे? Date. Debit side पे date, then receipts. Receipts मानी the cash that is coming in, right? So receipts में whatever cash is coming in वो हम लिखेंगे. Then receipt number and ledger folio LF जो हम लिखते थे journal entries में, and cash rupees. यहाँ पे मैंने single columnar cash book बना के रखी है. There will be 2 column 3 columns and we'll see to it accordingly. And on the credit side यानी कि payment side पे date payment, क्योंकि cash जा रही है तो payment होगा.
वाउचर नंबर, एन एविडेंस बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई ओके फाइन ये कैश हमने पे करी है. LF लेजर फोलियो एंड cash rupees. These are the columns that you are supposed to make. You may pause the video and write the format just for your better understanding that this is our debit side and this is our credit side. One more thing. Some of the students were asking me whether we can make debit side on one page and credit side on another page. No, you cannot do so. It has to be in a particular page, or else you can use a pin page and you can write, but you cannot write debit side आगे and then पीछे credit side. That is not possible in case of cash book, right? So this is how you are supposed to prepare the columns. Now without wasting any more time, let's start doing the sums itself. हम sums करेंगे तो ही better पता चलेगा कि ये होता कैसे है. और दूसरी एक बात, सम शुरू करने से पहले, वन थिंग इज क्लियर, कैश इज अवर असेट, एंड असेट है तो उसका कौन सा बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट बैलेंस होगा कि भाई ये मेरी असेट है, आई एम गोइंग टू यूज इट इन फ्यूचर, सो उसका बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट बैलेंस होगा. करेक्ट. नाउ कैसे होगा, क्या करेंगे, विल सी टू इट बाय द क्वेश्चंस इटसेल्फ. योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 184 क्वेश्चन नंबर 3 इज देयर. Record the following transactions in the book in the cash book of प्राप्ति. प्राप्ति के कैश बुक में हमें following transactions रिकॉर्ड करने हैं. करेक्ट. 1 जून 2015 का ओपनिंग कैश बैलेंस ऑफ ₹10,000 is given. So over here, June, just a minute, 2015, June 1st, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. क्यों, कैसे, सब कुछ हम समझेंगे. जस्ट वेट फॉर अ वाइल, आई विल बी डूइंग वन सम एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा उसको इस तरीके से लिखते हैं. अगर आपने लेजर पोस्टिंग कर लिया है देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि टू क्यों आया, बाय क्यों आया. इफ नॉट डन देन ऑल्सो इट इज़ फाइन, यू विल गेट इट सूनर और लेटर, नॉट टू वरी एट ऑल. सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने पैसे पड़े हैं हमारे पास, 10,000 rupees is there. So over here 10,000 rupees. करेक्ट. नाउ फिर क्या बोला गया है क्वेश्चन में, कैश सेल्स ऑफ ₹3,000. पैसे आए कि गए, कैश सेल करेंगे तो पैसे आएंगे कि जाएंगे, डेफिनेटली कैश विल कम इन, पैसे आएंगे. करेक्ट. सो ओवर हियर माई एंट्री विल बी इन माई कैश बुक. यहाँ पे मुझे पैसे मिले, राइट, कैश इज कमिंग इन. ऑन विच डेट इट वॉज, डेट वॉज 2nd. सो on 2nd of the date cash is coming in. So here again I'll be writing what, to sales account. क्यों, क्योंकि पैसे आए तो रिसिट साइड पे लिखेंगे कितना है, 3,000 rupees. So over here 3,000. चलो फिर नेक्स्ट इज कैश ऑफ ₹2,000 ब्रॉट इन द बिजनेस एज मोर फंड्स आर रिक्वायर्ड. फंड्स ज़्यादा ज़रूरी थे तो हम बिजनेस में और कैश लेके आए. तो अगर हम यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या करते, कैश टू कैपिटल करते, तो सेम वे यहाँ पे क्या करेंगे, 2,000 पैसे आए, बिजनेस में पैसे आए, राइट, कैश इज कमिंग इन. सो ओवर हियर इट विल बी 3rd डेट पे टू कैपिटल अकाउंट. How much it was, 2,000. So 2,000. Correct, as cash is coming in. Then cash purchase of 6,000. पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं, cash is coming in और cash is going out, cash is going out, right. Cash purchase मानी cash is going out, purchase to cash, ऐसी कुछ journal entry we used to pass. So cash is going out, payment side पे लिखेंगे वो. So over here my entry will be on 5th date by purchase account, just a moment, by purchase account 6,000. See, this is the rule that on the debit side whatever you are writing it will always start with the words to, and on the credit side whatever you are writing that will always start with the words by. Correct. So cash is going out, so by purchase account 6,000. Then next, salary of 1,000 and brokerage of 1,500 paid by cash. Cash is coming in or going out,
paid by cash. So cash is going out, correct? So salary of 1000 and brokerage of rupees 1500, cash is going out. Let's write it down. On the 7th date, just a moment, 7th date, by salary account, and on this date itself, by brokerage account, 1000 and 1500. Still you may confirm the amounts. Yes, 1000 and 1500, right? Then next is goods of 5000 purchased from Drona by cash. पैसे आए कि गए? We have purchased the goods, so definitely cash is going out, cash जा रही है. द्रोना से buy किया तो क्या लिखेंगे हम? द्रोना लिखेंगे. The answer is no. We used to write the journal entry what? Purchase to cash. Same way यहाँ पे भी मुझे क्या लिखना है? By purchase account करके 5000. So on 9th of the date, by purchase account 5000. चलो then next. गुड्स ऑफ 6000 सोल्ड टू मानसी फॉर कैश. हमने गुड्स बेचे, पैसे आए कि गए? कैश इज कमिंग इन, राइट? क्योंकि हमने गुड्स बेचे हैं मानसी को 6000 में. सो ओवर हियर टू सेल्स अकाउंट 6000, just a minute, 6000 as cash is coming in. Then 3000 paid to Nairuti for goods purchased in the previous month. अब समझना अच्छे से इसको. हमने प्रीवियस मंथ में जब गुड्स बाय करे थे तब हमने कुछ ऐसी एंट्री पास करी होगी. परचेज अकाउंट डेबिट टू नैरुतीज अकाउंट. याद करो, जर्नल एंट्री तो हमने पढ़ा है पूरा. कुछ इस तरीके से एंट्री पास करी होगी, 3000 एंड 3000, करेक्ट? अब मुझे आके नैरुति पैसे दे रही है, सो माई एंट्री विल बी व्हाट? कैश अकाउंट डेबिट. सॉरी, हमने नैरुति के पास से परचेस किया था, तो वी आर पेइंग कैश टू हिम, कैश टू हर, राइट? सो कैश इज गोइंग आउट, सो माई एंट्री विल बी लाइक दिस: नैरुति's अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3000 एंड 3000. इतना समझ में आया? आई एम रिपीटिंग इट अगेन. मैंने जब परचेस करा था तब मैंने ये एंट्री पास करी थी, परचेस अकाउंट डेबिट टू नैरुति अकाउंट, क्योंकि मैंने उसको पे नहीं करा था. नाउ आई एम गोइंग एंड पेइंग टू हर, तो माई एंट्री विल बी व्हाट? नैरुति's अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. यस और नो? सो ओवर हियर माई एंट्री विल बी ऑन 19th date बाय नैरुति's अकाउंट 3000. सम ऑफ द स्टूडेंट्स डू आस्क मी, मैम क्यों नैरुति, क्यों परचेज नहीं? तो हमें और कुछ नहीं करना है. जब भी ऐसा कंफ्यूजन हो ना, तो हमें इस तरीके से एंट्री पास करके देख लेना है. क्या लिखते हैं? नैरुति लिखते हैं ना, तो वी आर सपोज टू राइट नैरुति. वी आर नॉट सपोज टू राइट परचेज, क्योंकि परचेज की एंट्री हमने प्रीवियस मंथ में ऑलरेडी कर ली थी. करेक्ट, अंडरस्टूड, कंप्लीटली ऑल राइट. लेट्स मूव अहेड. किंजल पेड 1500 फॉर गुड्स सोल्ड टू हर इन द प्रीवियस मंथ. हमने किंजल को प्रीवियस मंथ में गुड्स सेल करे थे, तो हमने कुछ ऐसी एंट्री पास करी होगी, किंजल टू सेल्स, करेक्ट? अब मुझे वो आके पैसे दे रही है 1500, सो माई एंट्री विल बी कैश टू किंजल, करेक्ट? सेम, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? 23rd टू किंजल अकाउंट 1500. अंडरस्टूड? चलो देन नेक्स्ट. ओल्ड साइकिल ऑफ 600 इज परचेस्ड फॉर बिजनेस. हमने साइकिल बाय करी बिजनेस के लिए. पैसे आए कि गए? आए कि गए पैसे? हम साइकिल बाय कर रहे हैं, पैसे आए कि गए? कैश इज गोइंग आउट. सो ओवर हियर ऑन 25th of the date बाय ओल्ड साइकिल. कितना था? 500 था, 600 था? 600. चलो फिर 1000 रिसीव टूवर्ड्स कमीशन. पैसे आए कि गए? रिसीव्ड टूवर्ड्स कमीशन, पैसे आए, राइट? सो ओवर हियर ऑन 28th of the date टू कमीशन अकाउंट 1000, करेक्ट? चलो देन मशीन ऑफ 3500 परचेस फॉर बिजनेस. पैसे आए कि गए? मशीन बाय करा तो पैसे गए. सो ऑन 30th date बाय मशीन अकाउंट 3500,
करेक्ट। हमने कुछ ये सब कर लिया, सब जो पैसे आए वो लिख लिए, पैसे गए वो लिख लिए। एक चीज़ आप अच्छे से समझना, मेरे पास जितने पैसे आएंगे मैं क्या उससे ज़्यादा खर्च कर पाऊंगी? द आंसर इज नो। कैश का बैलेंस कभी भी नेगेटिव जा सकता है? द आंसर इज नो। आप मुझे बोलो मैम हमारे कोई फ्रेंड से पैसे लेके भी तो हम खर्च कर सकते हैं, पर जब फ्रेंड्स से पैसे लेंगे तो उस टाइम पे भी पैसे आए उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। सो इन दिस केस कैश का बैलेंस कैन नेवर गो इन नेगेटिव, राइट। अब यहाँ पे बैलेंस कैसे फाइंड करना है, ये बैलेंस होता क्या है ये चीज़, चलो समझे अच्छे से। रिसीट साइड का टोटल करो, 23,500 करेक्ट। रिसीट साइड का टोटल हैज़ टू बी 23,500। यू कैन डू इट on calculators if you want. Right, it is 23,500. अब जिस साइड का टोटल ज़्यादा इन कैश कॉलम डेफिनेटली रिसिप्ट साइड का टोटल ही ज़्यादा रहेगा। जिस साइड का टोटल ज़्यादा है ना उसको दोनों साइड रख देना है ऐसे करके। ये हम पहली बार कर रहे हैं तो मैं ऐसे सिखा रही हूँ। जिस साइड का टोटल ज़्यादा है उसको इसी तरीके से रख देना है दोनों साइड पे। लिख दिया। नाउ ये पेमेंट साइड का टोटल करो, कितना आ रहा है? $20,600 इज द पेमेंट साइड का टोटल, करेक्ट। रिसिप्ट मेरे पास 23,500 की थी, जिसमें से मैंने 20,600 खर्च कर दिए, तो मेरे पास कितने पैसे बचेंगे? 2,900 बचेंगे, यस और नो। सो यहाँ पे कहना है इसे 2,900 रुपीज़ मेरे पास बचे हुए होंगे 23,500 में से। वापस से बोल रही हूँ, रिसिप्ट मेरे पास पैसे 23,500 आए, जिसमें से मैंने 20,600 खर्च कर दिए, तो मेरे पास कितने पैसे बचेंगे? 2,900 बचेंगे। कंप्लीटली फाइन। तो यहाँ पे ऑन 30th डेट दिस विल बी व्हाट माय क्लोजिंग बैलेंस, जिसको मैं इस तरीके से लिखूंगी, बाय बैलेंस कैरी डाउन, और यू मे राइट द वर्ड कैरी फॉरवर्ड ऑल्सो। बाय बैलेंस कैरी डाउन माने ये बैलेंस को हम नेक्स्ट मंथ जुलाई डे 1 पर जब हम कैश बुक खोलेंगे तो हमारे पास ये बैलेंस इधर होगा। 2015 जुलाई 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 2,900। जैसे यहाँ पे ऊपर 10,000 था ना, सेम वैसे यहाँ पे कितना रहेगा? 2,900। इज इट कम्प्लीटली ऑल राइट? वापस से बोल रही हूँ, रिसिप्ट साइड पे मेरे पास 23,500 आए, उसमें से मैंने ये सारे खर्चे पेमेंट साइड पे कर दिए। करने के बाद मेरे पास हाथ में एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑन 30th जून इतने पैसे बचे। सो उसको मैं क्या बोलूँगी? मेरा क्लोजिंग बैलेंस। एंड आई राइट व्हाट? बाय बैलेंस कैरी डाउन, जो मैं कैरी करके कहाँ लेके जाऊँगी? जुलाई 1 को पैसे के साथ मैं शुरू करूँगी लिखना, करेक्ट। सो 1 जुलाई को आई विल बी राइटिंग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन वट एवर इट इज 2,900। completely all right, completely clear. Is it fine? So this is the basic sum of cash book. We'll be doing further sums in our next class. Thank you.